relation and function. If you know what is the function or what is the relation, in class 11 you have studied something about sets. Sets में सबसे पहले चीज आएगी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट. Cartesian product. Remember what was Cartesian product? If you are given two sets as 1, 2, 3 and a set B as 2, 4 and 6, and we found A cross B, that was 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 2, 3, 4 and 3, 6. This was known as a Cartesian product of the two sets. And we studied something about relations also. What was the relation? R is a relation is equal to. That means R is a subset of the Cartesian product A cross B, whose elements satisfy this condition. So we say R is equals to वो elements लेने तो equal to है. 2 आया. और कोई आया? और कोई भी नहीं है. मैंने कहा S is a relation is half of. S क्या होगा? 1, 2, 2, 4 और 3, 6. ठीक है? ये इसी का सबसेट है. और एक चीज हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए multiplied by number of elements of B. Was it so? Number of elements of A. Number of elements of A. How many elements are there in A? 3. Into 3, 9. The number of relations equals to 2 to the power 9. That is 2 to the power m into n. That is 2 to the power number of elements of A into number of elements of B. And what is it? Number of subsets are A cross B के, and every subset will define a relation. Every set is related to a relation. क्यों? Every subset is a subset. Every R is a subset of A cross B. अब इसमें कितना है ना, बस 2 to the power 9 आ गए. 2 to the power 9 कितना है? 512 relations आ गए. तो we cannot define all these 512 relations, but there are 512 relations, including an empty set. हाँ? We have studied all these things in class 11. Now we are going to study something different from this. अब हमने का relation to define हो गया. अब हमारे पास type of relation है. Is this thing clear? ये recall था एक सारा पिछला class 11 का, जिससे कि अब यहाँ पर आगे काम कर सकें. We have types of relations now. Basically, we have 3 types of relations. The first one is reflexive.
second one is symmetric, and the third one is transitive, and there is one more known as equivalence relation. अब equivalence relation सबसे पहले बता रहा हूँ क्या है. If R is reflexive, symmetric and transitive, then R is a equivalence relation. अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज हो जाती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या चीजें हैं. तो मैंने कहा इफ फॉर एवरी A belongs to A comma A belongs to R, then R is reflexive. यहाँ if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R. If A comma B belongs to R, it implies B comma A also belongs to R. Then R is symmetric. Transitive. If A comma B belongs to R, comma B comma C also belongs to R, and it implies A comma C belongs to R, then R is transitive. Okay, मैंने चीज लिखी A comma B belongs to R, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A R B. That means A is related to B. इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इनको रीड आउट करूं तो if A R A is related to A, for every A belongs to A, then R is reflexive. इसमें if A is related to B implies B is related to A, then R is symmetric. And here if A is related to B, B is related to C implies A is related to C, then it is transitive. Okay, सर वो उल्टा है का for every, this is a symbol. For every A belongs to A, जो भी आपको सेट दे रखा है उसके हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. यहाँ पे केवल रिफ्लेक्सिव ही ऐसा है जिसमें हम हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, बाकी कंडीशंस तो इफ एंड देन वाली है कि अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, अगर 1, 2 है तो 2 चेक करूंगा. ठीक है, if A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R, then it is symmetric. और same way for transitive, if AB है और BC है तो ही AC चेक करना है, AB है BC तो है ही नहीं तो AC चेक नहीं करना है, and in that case it will be considered as transitive relation. Now if a relation is satisfied all these three conditions, if it is reflexive, symmetric and transitive, then R is a equivalence relation. Okay, is that clear? We'll look at some examples and the way how to represent our question. Open your exercise, look at the first question. Determine each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. The first part है relation R, defined on exercise 1.1, question first, A part. The set A is given to you as 1, 2, 3, 4 up to 14. 1, 2, 3, 4, 5, 13 and 14. And R is a relation of x, y such that
Vx minus y is equal to 0. Can we list all the elements of R? Can we list all the elements of R? Yeah. R. X equals to 1, y equals to 3, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 15 हमारे सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है. So this is the set R. अब यहाँ पे मैं A क्रॉस A निकालने की जरूरत है मेरे को सारों की? नहीं. इससे मैंने क्वेश्चन में कहा था कि डिफाइंड ऑन A. इस A सेट पे डिफाइंड है. जब सेट A पे डिफाइंड है तो A ऑन इटसेल्फ. अगर A से B पे डिफाइंड होता तो A और B दो सेट्स हमारे को दिए होते. यहाँ पे डिफाइंड ऑन A है, दैट इज A क्रॉस A. अब A क्रॉस A निकालूं मैं तो कितना आएंगे? 14 14 जब 196 एलिमेंट्स आएंगे. 196 में मुझे चाहिए कितने थे? 4 एलिमेंट्स. तो 196 बनाने की जरूरत थी नहीं. लेकिन हाँ, आपको ये पता है ना कि ये 196 एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स आए. ये तो पता लग गया ना. अभी स्टार्टिंग हमने इसी तरह से करी थी. पहले A क्रॉस से निकाला था. आज जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंगली उसमें से एलिमेंट्स चूज किए थे. तो उसमें से मैंने चूज किए, मैंने उसी में से निकाल के उतने को उतने लिख लिए जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. आपको लगता है कि और एलिमेंट रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को? इट विल नॉट सेटिस्फाई. ठीक है. आप x की वैल्यू आप y की वैल्यू 2 रख के देखो जरा. अगर y की वैल्यू 2 है, x कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा. क्या 2/3 सेट में बिलोंग करता है? सेट में बिलोंग नहीं करता. हां, दे रखा होगा तो कंसीडर होगा, नहीं दे रखा तो नहीं होगा. जो यही एलिमेंट्स हैं आप जो दोनों x और y के लिए यूज कर सकते हो. ठीक. नाउ फर्स्ट कंडीशन, रिफ्लेक्सिव. 1, 1 does not belongs to R. जो भी कंडीशन है तीनों, इनमें से कोई एक वैल्यू भी अगर डिससेटिस्फाई होती है तो नो है, यस नहीं है. एक मैंने चेक किया 1, एलिमेंट्स तो 1 से लेकर 40 तक सारे हैं. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. रिफ्लेक्सिव कब होता है ये? अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 से 14, 14 तक सारे एलिमेंट्स अगर R में आ जाते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है. यहाँ पे एक भी नहीं आया, एक आया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया तो वो नॉट हो गया. अब सारे चेक नहीं करना है. मैंने एक चेक कर लिया, मुझे एक नहीं मिला, एक के लिए डिससेटिस्फाई कंडीशन हो गई, बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं है. तो हमें लिखेंगे therefore if A belongs to A, then A, A does not belongs to R, so R is not reflexive. ठीक है. एक एग्जाम्पल दिया और बाकी उसको जनरलाइज कर दिया. हर एक के लिए नहीं है ना. इफ A belongs to A तो नहीं आ रहा. सेकेंड कंडीशन, सिमेट्रिक. इसमें 1, 3 belongs to R, but 3, 1 does not belongs to R. Therefore, A, B belongs to R, but B, A does not belongs to R. So R is not symmetric. अब जरा ट्रांजिटिव को ध्यान से सुनना. ट्रांजिटिव 1, 3, 3, 9. तो 1, 9 होना चाहिए. 1, 3 belongs to R. 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R. So AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belongs to R. R is not transitive. ठीक है. One more thing, they are not dependent on each other.
आपने कहा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बाकी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। These three things are independent. तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। हैपनिंग ऑफ वन डजंट एक्सक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर। कि अगर एक नहीं हो, एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, या एक नहीं हो रहा तो दूसरा होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ ये ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूव हो गया ना। अब मेरे नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, अगर मैं यहाँ से 3 लाइन हटा देता हूँ, मान लो अभी ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? नाउ दिस इज ट्रांजिटिव। क्यों? ट्रांजिटिव को डिससेटिस्फाई करने वाली कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। 1 3 है, 3 से आगे वाला नहीं है तो तीसरा चेक ही नहीं करूंगा। 2 6 है, 6 कंटिन्यूएशन वाला कोई नहीं है, नहीं होगा। 4 12 है, 12 से आगे वाला कोई नहीं है तो चेक ही नहीं होगा। जब चेक ही नहीं है, कोई उसको डिससेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा अब, ठीक है। नाउ दिस इज ट्रांजिटिव। समझ में आई बात? फिलहाल तो यहाँ पे मैं 3 लाइन था और ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। अनदर थिंग, अब जितने हमारे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ तो कहते हैं आप रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या हर जगह में रिलेशन डिफाइन कर पाऊंगा? आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे मैं हर जगह पूरा रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जनरलाइज चलेगा, तो हमारे को थ्योरेटिकल आंसर्स ही लिखने पड़ेंगे, क्लियर, ठीक है। रब कर दें, लेवल